Good morning, everyone. A very good morning to all present. I, Ranjan Kumar Sahu, on behalf of Department of Education, School of Open Learning, and the whole event team, welcome you all to another dialogue under the Dialogue Series on Education 2021. First of all, we want to express our heartfelt thanks to Professor Bandana Saxena ma'am for accepting this invitation. Professor Saxena ma'am is quite well known in the world of academia for her contribution in the field of diversity and inclusion. Having ma'am as a speaker in this specific area is a kind of treat for all of us. I am sure that we will get benefited after this event. So regarding this dialogue series, I must say, ma'am, how we conceptualize this dialogue series, that when we are thinking about making this dialogue series, first of all, in our mind that let's have a seminar or webinar of, 1 day or 2 day national webinar for a long day-long event. But then we decided in education as an interdisciplinary subject, there are so many things to cover up. So then we thought, instead of making a 1 day national seminar or international seminar, it's good for us to prepare a dialogue series. As a result, we can have event every month. So that was the initial notion in our mind, and in that notion we started this dialogue series. So first of all, I would like to give a bio sketch about Bandana ma'am. So Professor Bandana Saxena presently working as a professor in Department of Education, which also popularly known as the Central Institute of Education, CIE, University of Delhi. Professor Saxena has around 27 years of teaching and research experience and serving the Department of Education, University of Delhi since 1997. Ma'am's area of specialization include diversity, pedagogy and inclusion, science education, and research in education. She has authored numerous articles and presented research papers in various national and international conferences. She has also in advisory and editorial boards of many national and international journal of repute. She has 3 books to her credit. Along with that, she has written many chapters and modules for master trainers for inclusive education in association with World Bank and Ministry of Education, India. Professor Saxena has also worked with Department of Special Needs at NCERT for developing a tool for textbook analysis from the segment of inclusion, disability, gender and socially marginalized and economically weaker section. In addition to above, Professor Saxena has also associated with many national and international organizations like World Bank, Ministry of Education, NCERT, NCTE, SCERT, Roehampton University, London, USEF, UGC, and so on. Professor Saxena has also led various major and minor research projects funded by UGC, ICSSR, NCERT, and University of Delhi. In addition to above, Professor Saxena has also appointed as the convener National Level Core Committee, NCTE, B.Ed, M.Ed, 3 years integrated degree program to finalize the curriculum for the program and develop model syllabus for the program as per the norms and regulation 2014. MEMS work with the academic vision of innovation and good practices in teaching is highly dedicated for the promotion of equal opportunity for all. Even you all may have noticed in the poster that even while spelling her name, ma'am believe that all alphabets are equal significant and the thought is more important than the person. So she suggested to use lowercase for her name in the poster. So you all must have noticed in the poster that her name has been written in lowercase only. Once again, I am reiterating my statement that we all are really grateful to have ma'am as a speaker for today's event. I would now request ma'am to start today's event. So right now more than 200 students has already been joined. So ma'am, it's an opportunity for us to have you in this topic because we know, I personally know you very well that getting you in this area is a treat for all of us. So over to you ma'am. Thank you. हम सभी को सुबह के नमस्ते। आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट काम है ये, हम सबको एक दूसरे को ग्रीट करें। आई डोंट नो, आप लोग सब अभी फ्रेशर्स हैं, स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे वो शायद मुझे नहीं जानते होंगे, बट रंजन जी मुझे जानते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। उनके बारे में कभी और चर्चा करेंगे कि किन कारणों से रंजन मुझे जानते हैं। बट थैंक यू सो मच रंजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरती से मेरे बारे में बात करने का। बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारे बारे में अच्छी तरह बात करता है, तो दिन की शुरुआत अच्छी होती है।
सो थैंक यू रंजन, मुझे इस फोरम में इनवाइट करने के लिए एंड एट द सेम टाइम ऑडियंस के साथ मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए। आप जानते हैं जैसा कि आपने कहा भी कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए ऐसे स्क्रीन को देख के बात करना, बिकॉज हमें लोगों को सामने देखकर बात करने की बहुत आदत है, बट वी आर जस्ट होपिंग दैट you know, in even this mode of interaction, I would be able to bring in certain important points with regard to diversity and inclusion, and I share these with the students. So I would go bilingual. I think that's okay with us. Hindi Angrezi mix, right? That is how, yeah. That would be great, ma'am. That I understand. You know, I have been a part of this university since 1986. As a student when I joined it. So I know that how our university is. We are always a mix of Hindi, Angrezi, and now so many more languages because people are coming in from all over India to our university. Very proud to be an alumnus and now a member of this university as a teaching faculty. So yeah, so thanks to the university also, I think, for that reason. Ranjan ji, I would need your permission to share the screen so that we can go on the task. Students जो हमारे साथ हैं वो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि SOL एजुकेशन के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे. Is that right? Yeah, most specifically second and fourth semester students are there. Yeah. Okay. So I think it's time for us to start into a formal kind of a discussion about this entire idea. So as a matter of practice, I always start by giving a big thank you to all the people who have helped me arrive at this stage जहाँ मैं आज अपने कुछ ideas को original तरीके से carve कर पाई हूँ, उन्हें बना पाई हूँ और मैं आज आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ. So definitely my parents, as all of us know that parents have a lot of contribution in our entire growth. My teachers, a very big acknowledgement and a very big thank you to all my teachers throughout my life. All the teachers who told me कि मुझे क्या करना चाहिए और वो भी teachers जिनको देख के मैंने ये सीखा कि एक teacher को ऐसा नहीं करना चाहिए. So I think all teachers directly or indirectly have contributed to my journey to this place where I am at this moment. And of course, a very, very warm thank you to all my students. I've been a school teacher for 4 years and I know that students जो हैं वो जिस तरीके से हमारी journey पे हम contribute करते हैं वो immense है. So starting right from young children, grade 6 to grade 10 that I taught, whom I taught in in school time, to the postgraduate students जो CI में जिनके साथ मेरी बातचीत रही, जिनके साथ हमने discussions किए, जो different courses के अंदर हम लोगों ने बातचीत करी और जिस तरह के new insights, observations students ने हमारे साथ आके share किए, I think वो मेरी learning के लिए बहुत important थे. Every time, you know, I was pushed into a kind of a zone जहाँ पे हमें कुछ करना पड़ा, सोचना पड़ा और वहाँ से सोच के फिर हमें बाहर आना पड़ा. तो आई थिंक ये जो पूरा सोचने का प्रोसेस है जो हमें हमारे को मानसिक तौर पे तैयार करता है कि हम हमेशा एनर्जाइज्ड रहें, अटेंटिव रहें, इसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन उन सब लोगों को जाता है जो हमारे इस पूरे प्रोसेस के साथ, हमारे इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़े रहते हैं. स्टूडेंट इसका एक अभिन्न हिस्सा है और मैं उनको बहुत ग्रेटली एक्नॉलेज करती हूँ. स्टूडेंट्स को एक्नॉलेज करने का मसला ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक कोई प्रोटोकॉल है जिसमें हम माता पिता की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, टीचर्स की बात करते हैं तो चलो हमने स्टूडेंट्स को भी जोड़ दिया. मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है और मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है कि स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन एक टीचर की लाइफ में बहुत होता है एंड दैट इज वेयर दिस एंटायर आइडिया जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. इस पूरे मसले को जब से मैंने महसूस करना शुरू किया कि स्टूडेंट एक दूसरे से अलग होते हैं, हर एक स्टूडेंट सेम नहीं होता, तो अपना BEd M.Ed करने के बाद जब मैं पहुंची यहाँ पर स्कूल में पढ़ाने के लिए तो इस सोच को लेकर ही पहुंचे क्लास के अंदर के ठीक है स्टूडेंट होते हैं, 50 होते हैं, 40 होते हैं, जितने भी होते हैं, बट एट द सेम टाइम ये बहुत इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए कि वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स हमें किस तरीके से देखते हैं, समझते हैं और उन स्टूडेंट्स के सीखने का तरीका क्या सेम होता है, क्या वो सेम तरह की सोच के साथ, मनस्थिति के साथ स्कूल के अंदर आते हैं या कहीं उनके आइडियाज़ में, कहीं उनके माइंडसेट में, कहीं उनके लेवल ऑफ प्रिपरेशन में, कहीं उनके साइको सोशल एक्सपीरियंसेस में कुछ डिफरेंस होता है या वो सब एक जैसे ही होते हैं.
स्कूल के अनुभव के दौरान मुझे पता चला कि वो सब अलग होते हैं। पढ़ाने के लिए मेरा जो विषय था वो बहुत ही सरल था। मैं फिजिक्स पढ़ाती थी स्कूल के अंदर, क्योंकि मेरा मास्टर्स न्यूक्लियर साइंस में है, न्यूक्लियर फिजिक्स में है, तो मैं फिजिक्स पढ़ाती थी स्कूल के अंदर। फिजिक्स पढ़ाने में हमें ऐसा लगता है कि फिजिक्स का जो कंटेंट है किताब के अंदर लिखा हुआ है वो तो एकदम स्टैंडर्डाइज्ड है, उसके अंदर तो हमें कुछ चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें जाना है, किताब उठानी है और वो समझा देनी है स्टूडेंट को जो भी उसके अंदर कंटेंट लिखा है। लेकिन फिर उस अनुभव के दौरान ही ये पता चला कि हर एक स्टूडेंट की सीखने की प्रक्रिया, उसकी बातों को सामने रखने की प्रक्रिया अलग अलग तरीके की होती है। और वहाँ से जो सोच चली अपने जहन में वो आज तक मतलब है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टूडेंट डाइवर्सिटी या पीपल्स डाइवर्सिटी के मल्टीपल डोमेन्स को हार्नेस कर रही हूँ, उनको समझ रही हूँ और उनमें आगे चल रही हूँ। तो ये स्टूडेंट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का जो पॉइंट मुझे रंजन जी ने कहा कि मैं आप लोगों के साथ साझा करूँ, मेरे दिल और दिमाग दोनों के बहुत करीब है, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी कुछ बातें आपके सामने यहाँ से रख पाऊंगी। शुरुआत में ही एक बात कह देना चाहती हूँ कि ये सारा जो मटेरियल मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ सारा कॉपीराइटेड है, क्योंकि मेरा ओरिजिनल मटेरियल है। जिस तरीके से मैंने उसको कंपाइल किया है, आपसे अनुरोध है कि अब ये एक लार्जर ऑडियंस के लिए जा रहा है, तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि जहाँ पर भी इसको रेफर करें वहाँ उस पर प्रॉपर आप रेफरेंस जरूर दें उसका, बिकॉज जब ये पब्लिकेशन में जाएगा तो देन इट बिकम्स एन इशू अदरवाइज। So thank you. I hope we are on the same platform on this. So when we start talking about the student, I think student की जब हम बात को शुरू करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा स्टूडेंट का वंदना, मेरा नाम वंदना है। जब मैं स्कूल में गई, जब मैं कॉलेज में गई एज अ स्टूडेंट, जब मैंने वहाँ पे एंटर किया तो क्या वंदना गई वहाँ पे, या वंदना के साथ बहुत सारे उसके पक्ष थे जो वहाँ पर पहुँचे। आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि जिस संदर्भ में आज हम बातचीत कर रहे हैं उसमें ये तीन जो आइडियाज़ हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट मेरा क्या है, मेरी शुरुआत जब मेरे जन्म लेने के बाद से ही मेरी जो शुरुआत में जो मेरा जिस समाज में और जिस सामाजिक प्रक्रियाओं के द्वारा मैं बड़ी होती हूँ वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल स्पेंड करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं मेरी पूरी बीइंग में, मेरे सोचने के तरीके में, मेरी चीज़ों को समझने के तरीके में। तो मेरा सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हमेशा अपने नाम के साथ, नाम के अलावा मैं और क्या क्या लेके आती हूँ, मैं अपना सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अपने साथ लेके आती हूँ। मैं उन तमाम, एक स्टूडेंट जो होता है उसके बारे में एक सोच होती है, एक संकल्पना होती है कि ये स्टूडेंट जो है यदि बीएड कर रहा है तो ऐसा होगा, यदि ये स्टूडेंट एमए कर रहा है तो ऐसा होगा, यदि बीए कर रहा है तो ऐसा होगा। एजुकेशनल थियरीज ने हमें ये बताया है कि अलग अलग जगह से आने वाले जो लोग हैं उनके सीखने और समझने के तरीके उनकी एज के हिसाब से, एज अप्रोप्रिएट लर्निंग मैकेनिज्म एज ऑल्सो द पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट कैन बी एक्सपेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, और वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं मेरी पूरी जर्नी में एज अ स्टूडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So I think there are educational theories which speak about the psychosocial perspectives of understanding the learning processes in a student, which are equally important when we are talking about students per se. Next is the state. The state means sarkar, governance. वो किस तरह से समझती है लॉज एंड पॉलिसी क्या है। तो यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी जो लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूनिवर्सिटी के, क्योंकि मैं वहाँ पढ़ाती हूँ और आप लोग वहाँ पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी का ही एक हिस्सा है हमारा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो किस तरीके से ये स्कूल चीज़ों को आगे लेके चलता है, इसके अपने नियम कानून क्या हैं, और एट द सेम टाइम जब मैं एक उम्र को ले लेती हूँ तो मेरे साथ किस तरह के नियम और कानून सरकार के जुड़ जाते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्टूडेंट जो मेरे पास आ रहा है वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया की तरह भी आ रहा है, एक स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी की तरह भी आ रहा है। तो किस तरह के लॉज एंड पॉलिसीज उसके बीइंग को गवर्न करते हैं, they also become very, very important. Now when we are talking about students, one of the very important thing for all of us to understand is that
स्टूडेंट के बारे में, क्योंकि हम सब एक्चुअली, अगर मैं खुद को देखूं, बेशक मैं पढ़ा रही हूँ, मैं रंजन जी को देखूं वो SOL में पढ़ा रहे हैं, या आप सब लोग जो पढ़ रहे हैं, हम सब लोग जो एजुकेशन के माध्यम से उसको साझा करते हैं, हम सबको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो संकल्पना है, हमारा जो विचार है, उसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट के प्रमुख तौर पे, या स्टूडेंट के तौर पे, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट के प्राइमरी फिगर में, अगर हम सब अपनी आंख बंद करें और हम बोले स्टूडेंट एकदम से, अगर हम बोलें कि अब इसकी किसकी इमेज आती है हमारे दिमाग में, तो हमारे दिमाग में एक बच्चे की इमेज आती है जो स्कूल जा रहा है। तो स्कूल गोइंग बच्चा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर आता है। तो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in any of the nations or in any of the contexts will be school students, and so जो स्कूल स्टूडेंट है उसको हम चाइल्ड के नाम से डोनेट करते के नाम से डिनोट करते हैं, उसको उस नाम से हम उसको बुलाते हैं। सो इट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि क्या बच्चे को लेके किस तरह की समझ और सोच हमारे पूरे प्रोसेस के अंदर है। तो हम जब बात करते हैं बच्चों की, तो हम स्टेट की बात करते हैं, हम ऐसा समझने की कोशिश करते हैं। हमने अपने जो 3 प्रमुख दायरे यहाँ पर लिए, जो आप देख पा रहे होंगे, स्टेट, सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड एजुकेशनल थ्योरीज। इसमें स्टेट वाले क्वेश्चन पे जब हम जाते हैं तो हम पहले यहाँ से देखते हैं कि वैचारिक संकल्पना क्या है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो स्टेट है उसके 3 सेगमेंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं, एक लेजिस्लेटिव, एक तीसरा जुडिशरी और तीसरा एग्जीक्यूटिव। सो लेजिस्लेटिव जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स, यूनाइटेड नेशन के चिल्ड्रन राइट्स को हम किस तरीके से समझते हैं, हम पॉलिसी को किस तरीके से समझते हैं, ये सारी बातें हमारे लिए अहम हो जाती हैं, विच इज द लेजिस्लेटिव पार्ट ऑफ इट। Judiciary is of course the legal part of it, and executive is the policy and the other enforcers. For example, the University of Delhi is one of the executive bodies in this entire process of the state. So in 3 segments को समझना और इन तीनों segments के तहत बच्चे की संकल्पना को समझना हमारे लिए बहुत important हो जाता है। तो इंडिया के संदर्भ में, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ भारत, अगर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बच्चे की समझ एक सिंगुलर आइडेंटिटी से लोकेट होती है, या उसके लिए अलग अलग जगह अलग अलग कुछ तरह का कंफ्यूजन है, तो ये कुछ 3, 4, 5 पॉइंट्स मैंने लिखे, जिसमें थोड़ा सा आपको जो डिलेमा है या जो कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस हैं, वो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आप उसको लोकेट कर पाएंगे, आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। 1999 में जब यूनाइटेड नेशंस ने बात करी अपनी, तो उन्होंने कहा, उन्होंने जब बच्चे को डिफाइन किया तो उन्होंने कहा कि चाइल्ड इज एन इंडिविजुअल हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18। 18 साल तक की उम्र तक किसी भी व्यक्ति को हम बच्चा मानेंगे। यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज जब हम राइट्स की बात करते हैं, या यूनाइटेड नेशन बहुत सारे प्रोविजंस की बात करता है अलग अलग आयु वर्ग के लिए, तो उसमें बच्चे की संकल्पना कैसी रहेगी वो बहुत अहम है हमारे लिए समझनी। तो बच्चे की उम्र को उन्होंने 18 साल की उम्र तक के किसी भी व्यक्ति को उन्होंने बच्चे की तरह डिफाइन करने की कोशिश नहीं की, मतलब उन्होंने इसको स्थापित किया, एस्टैब्लिश था। Whereas जब हम चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 की बात करते हैं, अब हम इंडिया के संदर्भ में बात कर रहे हैं, और यहाँ आके हमारा जो उलझना है वो अब स्टार्ट होता है कि हम बोलते हैं कि जब हम चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट की बात करते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि बच्चा वो व्यक्ति है जिसने अभी 14 साल की उम्र को अटेन नहीं किया। तो ये इसकी पूरी की पूरी जो बात है, यू नो, दिस एक्ट आल्सो प्रोहिबिट्स employing children in 65 processes and 18 occupation that it views as hazardous, including beedi making, tanning and bricklaying and all those kind of things. This includes many other things, for example bangle industry, or you know things like cracker industries and things like that. तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर इन्होंने जब उस पूरी बच्चे की संकल्पना को रखा, तो यहाँ पे इन्होंने 14 साल की उम्र को लीगली सीमित कर दिया। तो दरअसल 18 साल की उम्र तक हम बच्चे हैं, पर चाइल्ड लेबर के केस में 14 साल पर इसको लिमिट किया गया। एक डिलेमा है
जिसको हमें समझना है और अपनी अपनी समझ से फिर हमें इसको आगे लेके चलना है, क्योंकि हमारी विवेचना आज केवल लेजिस्लेटिव प्रोसेस पे अकेले नहीं है, हमें पूरी स्टूडेंट डाइवर्सिटी को समझना है। तो इसलिए मैं इसको आपके सामने लेकर आई हूँ। अब इसके बारे में जो भी आगे का जो विचार विमर्श है वो किसी और समय पे किया जा सकता है या किसी और सेशन के द्वारा किया जा सकता है। मैट्रिमोनियल लॉज जो हैं, जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के बारे में बात करते हैं, ये 2006 में आया और ये हमारी चीज़ों को ज़्यादा कन्फ्यूजन में को हमारा इजाफा करता है उसमें, क्योंकि ये बोलता है कि लड़की तो 18 साल की उम्र में शादी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन लड़के को शादी के लिए तैयार होने के लिए 21 साल का वक्त लगता है। यानी कि यदि 21 साल से कम उम्र का लड़का शादी करता है तो इसके अंदर वो प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर हम उसके ऊपर प्रोसेसेस चला सकते हैं, लेकिन लड़की के केस में ये 18 है। तो पहली जगह पे हमने देखा कि लेबर के केस में उम्र के साथ जो है वो खिलवाड़ हुआ, और अब जेंडर को लेके उम्र के बात में कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है कि लड़की 18 साल की लड़की शादी कर सकती है, लेकिन लड़के को 21 साल तक देना है। लेकिन देखने में ये बातें ऐसी लग सकती हैं कि शायद ये तो कोई बात नहीं, इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता, पर कहीं ना कहीं ये जेंडर के संदर्भ में हमारी समझ को और प्रत्येक जेंडर की हम सामाजिक भूमिका को किस तरीके से देख रहे हैं, इसके ऊपर हमारा एक अहम ध्यान जाना हमारा यहाँ पे ज़रूरी है। इसके बारे में 18 से 21 के बीच में जो 3 साल का गैप है, लड़कों को क्यों दिया गया है, इसके बारे में सोचना हम सबके लिए आवश्यक है। क्या वो इसलिए दिया गया है कि ये अजम्पशन है कि लड़के जो हैं वो हायर एजुकेशन में जाएंगे, या वो इसलिए दिया गया है तो हायर एजुकेशन में लड़के जाएंगे लड़कियां नहीं जाएंगी? सोच के हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम लड़कों के लिए किसी बेनिफिट की बात कर रहे हैं, पॉजिटिवली बायस्ड है हम लड़कों के जेंडर को लेके या सोशलाइजेशन प्रोसेस को लेके या उनको ज़्यादा अवसर देने को लेके। लेकिन इसके साथ ही हम ये बात भी समझ सकते हैं कि लड़के किस तरीके से उनके ऊपर एक तरह का जो हम बोलते हैं दबाव होता है कि परिवार में खाने कमाने की या परिवार को आर्थिक रूप से जो सपोर्ट करने की जो जिम्मेवारी है वो भी पुरुषों पे मानी जाती है, मानी भी जाती है, लादी भी जाती है। तो शायद 3 साल का वक्त पुरुषों को इसलिए ज़्यादा दिया गया यहाँ पे, जिससे कि वो खाने कमाने के लायक हो सकें और परिवार को सपोर्ट कर सकें। तो जहाँ शिक्षा का जो मसला है वो एक अवसर का मसला लगता है, एक बेहतर अवसर का मसला लगता है, वहीं एक सामाजिक भूमिका में लड़कों को यदि आर्थिक रूप से जिम्मेवारियां उनके ऊपर डाली जाती हैं तो वो उनके लिए भी उतना ही बड़ा बर्डन होता है, या उसी तरह का एक बोझ, या उनसे एक इस तरह की समझ है, उनसे एक अपेक्षा है जो कि लड़कियों से 18 साल से पहले यानी कि परिवार के अंदर रह के अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करने की है। तो 18 और 21 साल की जो उम्र है जो लड़का और लड़की के लिए तय की जाती है शादी के लिए, जो की गई है हमारे लीगल प्रोविजन में, वो कहीं ना कहीं समस्यात्मक है और उसे हमें समझना जरूरी है। अब ये जब हम जुबिलेंट एक्ट के उस पे जाते हैं तो फिर इसके बारे में भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ मीन्स अ चाइल्ड हु इज alleged or found to have committed an offence and has not completed 18 years of age on the date of commission of such offence। तो जुबिलेंट एक्ट को लेके भी अब इसके बारे में रीओपनिंग हो रही है कि यदि कोई व्यक्ति 15 साल का है, 16 साल का है और अपनी पूरी समझ के साथ, अपनी पूरी कॉन्शियसनेस के साथ कोई क्राइम कमिट करता है तो क्या उसको जुबिलेंट एक्ट में केवल इसलिए लिया जाएगा क्योंकि वो 18 साल का अभी पूरा नहीं हुआ है? तो अलग अलग संदर्भों में जब हम देखते हैं तो हम ये इस बात को समझ पाते हैं कि ये डिबेट किस तरह निकल के आती है। 2012 में जो निर्भया कांड हुआ उसने इस पूरी डिबेट को, जुबिलेंट जस्टिस एक्ट के डिबेट को ज़्यादा प्रखर रूप से वो सामने लेकर आई और उस के बारे में चर्चा अभी जारी है। हालांकि इसके बारे में किसी तरह का कोई फाइनल डिसीजन आ गया है इसको लेके कह पाना मुश्किल है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, मेरे जहन में, मेरी समझ में और मेरे अभी तक के अनुभवों में जिस तरह का विरोधाभास अलग अलग लॉज के अंदर आया है हमारे लीगल सेगमेंट में बच्चे की संकल्पना को लेकर, वो मैंने आपके साथ साझा किया। अब हम चलते हैं सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, या उससे पहले चलिए ये भी समझ लेना हमारे लिए ज़रूरी है। अक्सर ऐसा लगता है कि यदि आप उम्र में छोटे हैं तो आपको आपके पास किसी तरह के कोई अधिकार नहीं है, मतलब छोटे, यदि आप
नौकरी में छोटे लेवल पे हैं तो आपके पास अधिकार नहीं है, उम्र में छोटे हैं तो आपके पास अधिकार नहीं है, यदि आप पुरुष प्रधान समाज में हैं तो महिलाओं के पास अधिकार नहीं है। तो अधिकारों को लेके एक बहुत ही डिबेट रहा है और ये समझना हमेशा रहा है कि किसके पास अधिकार होते हैं और किसके पास अधिकार नहीं होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने दोबारा इसको रेटिफाई किया और उन्होंने राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात करी कि बच्चों के भी अधिकार होते हैं, और उसमें 4 राइट्स को प्रमुख तौर पे रखा गया। राइट टू सर्वाइवल, टू लाइफ, हेल्थ, न्यूट्रिशन, नेम एंड नेशनैलिटी। ये जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था, जिसको काफ़ी साल हो गए, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये बात कि हम नाम को भी एक राइट का मसला मानते हैं। तो जब हम अपने संदर्भ में किसी को बिना नाम के बुलाने की कोशिश करते हैं, बच्चे इधर आओ, लड़के इधर आओ, छोटू इधर आओ, तो आई थिंक ये भी एक तरह की उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो उसकी डिग्निटी है, उसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन करता है। तो ये राइट टू लाइफ जिसको बुनियाद बना के हमारे यहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और उसके बाद फिटिसाइड्स के ऊपर चर्चा हुई। राइट टू लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को जीने का अधिकार है, हम उसे यदि उसको लिया जाता है बच्चे से जीने का अधिकार। ऐसा नहीं है कि माँ बाप ने बच्चे को पैदा किया है या बच्चा जो है वो समुदाय का है तो वो समुदाय उसके बारे में, कम्युनिटी उसके बारे में कोई डिसीजन लेगी नहीं। चिल्ड्रन हैव राइट टू लिव एंड दिस विल कंटिन्यू, दिस इज देयर बेसिक राइट। सो life, health, nutrition, name and nationality, very important right which the children have. Right to development is another right which the children have, and that talks about education, care, leisure. बच्चों को खाली रहने का भी हक है, बच्चों को खेलने का हक है, बच्चों को हर वक्त उलझे रहने का या बोझिल मनस्थिति में रहने की ज़रूरत नहीं है या फिजिकली ऑक्यूपाइड रहने की ज़रूरत नहीं है। सो राइट टू लेजर एंड रिक्रिएशन एंड कल्चरल एक्टिविटीज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट विच द चिल्ड्रन मस्ट प्रोफेस। अगर बच्चों के पास ये राइट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हम इस बात से हम कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे कि हमें छोटे बच्चों के लिए कौन सी तरीके से पढ़ाना चाहिए, प्ले वे मेथड क्यों होना चाहिए, बच्चों को घर से बाहर जाके खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, और आज के संदर्भ में बच्चों को घर के अंदर खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। तो राइट डेवलपमेंट के अंदर जो प्ले है, जो पूरा प्ले का जो पूरा आइडिया है, प्ले, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट प्ले, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स के छोटे बच्चे को ही हम किसी ट्रेनिंग के अंदर डाल दें। टॉकिंग अबाउट प्ले जो कि एक चिल्ड्रंस एक्टिविटी होती है, हम उसको समझना चाहते हैं कि वो उन किस तरीके से उसके ऊपर योगदान देते हैं। रंजन जी से मैं आग्रह करूंगी और कभी बाद में बात हुई तो मैं ज़रूर उन्हें बताऊंगी कि जो पूरा आइडिया ऑफ प्ले है वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है किसी भी व्यक्ति विशिष्ट, खासकर एक बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। इसके बारे में एक बार ज़रूर किसी से चर्चा करवाएं, आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा ये समझना और सीखना, क्योंकि आप लोग एजुकेशन के बारे में समझना प्रारंभ कर रहे हैं। सो राइट टू लेजर, क्रिएशन एंड कल्चरल एक्टिविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट विच द चिल्ड्रन हैव, एंड इट इज एन इंटरनेशनली एक्लेम्ड बॉडी विच इज सेइंग बच्चों को खेलने दो, उनको हमेशा पढ़ाने के लिए मत पकड़ के रखो। राइट टू प्रोटेक्शन, I don't have to explain this. There is a lot of conversation again in the last 15 years about child abuse and about child abuse not being a gender specific thing. कि ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ ही child abuse होता है, छोटे बच्चों के साथ, लड़कों के साथ भी child abuse का वो भी कहीं ना कहीं शिकार होते हैं। तो right to protection is very important from exploitation. When we talk about exploitation, we mean the particular thing that is जिसके अंदर child labor भी आता है, वो भी एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है बच्चों का, और उसको हमें समझना पड़ेगा। अब्यूज एंड निग्लेक्ट, बच्चे को छोड़ देना, ऑर्फन बच्चों के कोई राइट्स होते हैं कि नहीं, क्या उनको समझने की क्या उनको किसी तरह की संवेदनात्मक माहौल की आवश्यकता होती है कि नहीं। तो एक्सप्लॉयटेशन को हम केवल इस पूरे राइट टू प्रोटेक्शन को हम केवल चाइल्ड अब्यूज के ही कॉन्टेक्स्ट में ना देखें जिसके अंदर सेक्सुअल अब्यूज का मसला आता है, हम इसको चाइल्ड टू एक्सप्लॉयटेशन यानी कि राइट टू एक्सप्लॉयटेशन यानी कि हम उसको लेबर के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, उसको लेबर की तरह भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ऑफ कोर्स हम किसी भी तरह के और सेक्सुअल अब्यूज के बारे में ज़रूर बात करें, और नेग्लेक्ट का मतलब किस तरह की इमोशनल सपोर्ट उस बच्चे को चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटेक्शन is in all domains of the being, that is very essential for us. Right to participation is something which is very, very important, to express, to expression, to information, to thought and to relation. So I think ये जो
पूरा आइडिया होता है राइट टू पार्टिसिपेशन, ये तो हम सभी का है, हमारे को राइट टू पार्टिसिपेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी दिया है, बट एट द सेम टाइम जब हम राइट टू पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यदि छोटा बच्चा कुछ बात कर रहा है तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। बहुत ही ना छोटे न्यूआंसेस हैं ये जो एजुकेशन को समझने में हमारी मदद करते हैं। फिर रंजन जी से कहूँगी कि यदि मौका मिले तो चिल्ड्रंस वॉइसेस के ऊपर और उनका क्या एक डेमोक्रेटिक सेटअप में उनकी उसकी क्या पहचान या उसका क्या स्थान होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम काम कर रहे हैं एक बेंगलोर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जहाँ पे हम डेमोक्रेटिक क्लासरूम्स में चिल्ड्रंस वॉइसेस के बारे में बातचीत करते हैं कि बच्चों की साझेदारी से ही हम किस तरह अपनी बात को आगे लेके जा सकते हैं और अपने प्रोसेस को आगे लेके जा सकते हैं। सो आई थिंक चिल्ड्रंस वॉइसेस इन अ डेमोक्रेटिक स्कूल सेटअप इन अ डेमोक्रेटिक क्लासरूम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें हमें ये भी समझना और समझाना पड़ता है कि नॉइजेस और वॉइसेस के बीच में क्या फर्क है। जिसको हम नॉइज बोलते हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, और उसको यदि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर टू चिल्ड्रंस वॉइसेस। सो ऑल आर दीज काइंड ऑफ आर डिस्कॉर्सेस एंड आई हैव taken this opportunity to bring to you all the aspects of children's diversity, students diversity, so that जिस भी विषय पे फिर आप लोगों के पास यदि कोई फोरम हो तो आप पूछ के जाएं और कह सकें कि सर इस पे एक और सीरीज करवाइए, हम इंटरेस्टेड हैं। So that all that is your प्रोगेटिव। सो स्टूडेंट्स, आप जो भी लोग यहाँ पर हैं अपनी वॉइसेस को काउंट करने शुरू करिए। जस्ट बिकॉज आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिमांड नहीं कर सकते। आप अपनी बात को सामने रखिए और आप अपने दिमाग को अपनी बात को जब रैशनैलिटी के साथ सामने रखेंगे तो ज़रूर आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें सुनने को और समझने को मिलेंगी। सिस्टम इन्फ्लुएंस होता है आपकी बातचीत से। Socio-cultural context is the next component of the children's identity, which I showed you three components of a pie chart. And it is a very important aspect in a socio-cultural context. It's a very very important aspect that we're talking about. और जब भी हम किसी student, now I come to the idea of student, so across age की हम बात कर रहे हैं। अब हम स्कूल के बच्चे की भी बात कर रहे हैं, हम टर्शरी एजुकेशन में आने वाले स्टूडेंट की भी बात कर रहे हैं, और अब हम हायर एजुकेशन के बाकी कंपोनेंट्स जो हैं, मास्टर्स या किसी भी स्टूडेंट की अब हम बात कर रहे हैं across the different levels of it. So when we're talking about it, जो भी स्टूडेंट है, the student, ये मिल के बनता है, ये इन सब के मिश्रण से तैयार होता है एक चीज। कम्युनिटी, जिस समुदाय से वो बच्चा आता है उसके कम्युनिटी एक्सपीरियंसेस क्या हैं उस स्टूडेंट के। फैमिली बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पीयर बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ परिवारों में अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से कुछ के परिवारों में हायर एजुकेशन को लेके बहुत एस्पिरेशन होती है, उनको पेरेंटल सपोर्ट होती है और पेरेंट्स से एक तरह का उम्मीद होती है कि हाँ हम एक्साइटेड है कि हमारा बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है। फिर सम फैमिलीज थिंक कि तुम जा रहे हो तो चले जाओ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट पढ़ाई करके करोगे क्या। तो एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में जब एक छात्र आता है तो उसमें उसके पारिवारिक परिवेश में उसकी एजुकेशन को किस तरह आंका जाता है, उसको किस तरह की सपोर्ट मिलती है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, उसको क्या सपोर्ट मिलती है, ये उसकी प्रेजेंस को क्लासरूम में बहुत क्रिटिकल तरीके से इम्पैक्ट करती है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि फैमिली किसी भी स्टेज पे स्टूडेंट के एक बहुत क्रिटिकल सिग्निफिकेंस रखती है उस स्टूडेंट की प्रेजेंस का, उसकी मनस्थिति को लेके, और वो कितना कंट्रीब्यूट करता है और वो स्टूडेंट उस पूरे सिस्टम में से क्या लेके वापस आता है, इसमें भी परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है और उनकी भूमिका रहती है। जो परिवार का मैं कहती हूँ योगदान ज़्यादा रहता है और पीयर्स की शायद भूमिका ज़्यादा रहती है। हमारे जो संगी साथी हैं, जो हमारे साथ के लोग हैं, वो एजुकेशन के बारे में क्या समझते हैं, किस तरह की एस्पिरेशंस हैं और किस तरीके से वो हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक कम्युनिटी, हर एक समुदाय में एजुकेशन का एक सिग्निफिकेंस होता है। कुछ परिवारों में पढ़ने की बस परंपरा होती है, हमारे परिवार में सब पढ़ते हैं तो तुम भी पढ़ोगे, मुझे नहीं पढ़ना, मैं कुछ और करना चाहती हूँ, पर नहीं, आपको फॉर्मल एजुकेशन में तो जाना ही है, उसके अलग आप कुछ करना चाहते हो तो अलग से करो, उसको पढ़ाई लिखाई मेन होती है, बाकी सब हॉबी होता है। इस तरह के प्रेशर्स भी कई परिवारों के अंदर हमको मिलते हैं जो कि उनके समुदाय से जुड़े हुए होते हैं, बिकॉज उनके समुदाय में फॉर्मल एजुकेशन को लेके, पारंपरिक शिक्षा को लेके एक अलग तरह की सोच, एक अलग तरह की मनस्थिति है, और हर एक स्टूडेंट के ऊपर, हर एक यंग मेंबर के ऊपर उस परिवार के या समुदाय के प्रेशर होता है कि उनको ऐसा
करना है। और इसको ऑपोजिट तो हम बहुत बार करते ही हैं। अक्सर ये तो हमारे को ऑपोजिट सुनने को तो बहुत आसानी से मिल जाता है कि कम्युनिटी के अंदर सपोर्ट नहीं है, उस कम्युनिटी में से कोई पहले पढ़ा नहीं है, तो एक अतिशयोक्ति की तरह वो स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे सामने आते हैं और हम उनके ऊपर हम उनकी हर तरह से जिसको हम बोलते हैं प्रशंसा भी करते हैं और प्रोत्साहन भी देते हैं वो बाकी लोगों को अपनी कम्युनिटी के पढ़ने के लिए। मुझे याद है मेरे एक स्टूडेंट जो अपनी जिस कम्युनिटी में थे वहाँ पे फैक्ट्री वर्कर्स रहते थे सारे, तो इन्होंने दिल्ली की एक रिहाइश एरिया में रहते थे, वहाँ से इन्होंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ के काफ़ी आगे गए और फिर फाइनली उन्होंने सेल्स टैक्स ऑफिसर बने वो अपने एरिया में। तो उनका जो पूरा का पूरा जो उनका कम्युनिटी था उसमें लोग बहुत इन्फ्लुएंस हुए इस बात से। वापस जाके उन्होंने छोटे बच्चों को प्रोत्साहित किया, वापस जाके उन्होंने पढ़ाना शुरू किया उन बच्चों को, क्योंकि स्कूल एजुकेशन से बाहर हो जाना बहुत आसान था उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में बच्चों के लिए। तो एक तरह की अलग एक तरह के रोल मॉडल की तरह वो रहे। एक और हमारे स्टूडेंट जो मिर्ज़ापुर की एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते थे जहाँ पे ज़्यादातर काम जो है वो कारपेट बनाने का होता था, तो वहाँ पे उनके परिवार ने, उनके माता पिता ने जिस तरीके से उनको और उनकी बहनों की शिक्षा को लेके अपनी सोच बनाई और उन सभी बच्चों ने जिस तरह से अपनी पढ़ाई करी उस परिवार के लोगों ने, वापस जाके वो अपनी कम्युनिटी के लिए एक उदाहरण बने और उन्होंने उसके कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को, विशेषकर वहाँ की लड़कियों और महिलाओं को एजुकेशन को लेके एक नया पर्सपेक्टिव दिया। सो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट होते हैं कम्युनिटी के अंदर से जब इस तरह की अतिशयोक्ति आती है तो, लेकिन कम्युनिटी दोनों ही तरह से इन्फ्लुएंस करती है, हमें ये भी समझना जरूरी है। जब कम्युनिटी प्रेशर डालती है कि हमारे लिए पढ़ना लिखना जरूरी है, तो वो भी एक तरह की मनस्थिति है, एक तरह का जो सोच है वो स्टूडेंट के लिए क्रिएट करता है। सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दोनों ही चीज़ें। कोई भी व्यक्ति जब हमारे पास आता है उसके मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसके अंदर कहीं ना कहीं उसको कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और ये हमारे पर्सनहुड को क्रिएट करते हैं। अब ये अच्छी बात है कि हमारे पास पर्सन को लेके कोई एज लिमिट नहीं है, तो पर्सनहुड जो है, पर्सनालिटी जो है, वो एक 2 साल के बच्चे का भी एक व्यक्तित्व होता है। तो व्यक्ति होने के लिए मैं किसी उम्र के साथ जुड़ा पाना या किसी विशेष संदर्भ से जुड़ा पाना जरूरी नहीं है। यदि मैं हूँ तो मैं एक व्यक्ति हूँ, तो मेरा होना ही काफ़ी है मेरे पर्सनहुड के लिए। देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ पर्सनहुड एंड ऑब्वियसली जब हम एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो वो भी एक व्यक्ति है और वो स्टूडेंट भी अपनी इन तीन विशिष्टताओं के साथ हमारे संदर्भ में आते हैं, इन सारे स्पेसिफिक फीचर्स के साथ, सारे स्पेसिफिक बीइंग के साथ हमारे पास आता है। लिव्ड एक्सपीरियंसेस, अब ये एक मैंने साथ में ब्रैकेट्स में थोड़े उदाहरण भी देने की कोशिश की है जिससे हम समझ सकें कि दरअसल लिव्ड एक्सपीरियंसेस का मसला क्या है। सो दैट इज पीयर, हमारे साथी किस तरीके के थे। लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस, कुछ लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, कुछ लोगों की लाइफ में नहीं होता है। तो हमारे जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो किस तरह के रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। I had a friend when I was doing my MSc, you know, who was so I was doing my MSc in 89-91 का बैच था मेरा MSc का। हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही थे फिजिक्स डिपार्टमेंट में और वहाँ पे मेरे एक साथी थे जो सिख रिलीजन को बिलोंग करते थे और उन्होंने 1984 में जो सिख रॉयट्स हुए थे उनको विटनेस किया था उनके परिवार ने। तो उस पूरी चीज़ को लेके जो उसके एक्सपीरियंसेस थे, बहुत फ्रेश था 89 में उसके लिए जब वो आए थे हमारे साथ, उन्होंने जब ज्वाइन किया तो जिस तरह का एग्रेशन उसकी पर्सनैलिटी में था और एग्रेशन एक अलग कारण से था जो बाकी लोगों की पर्सनैलिटी में उनको देखने के लिए नहीं मिलता था। तो लिव्ड एक्सपीरियंसेस एक व्यक्ति की मनस्थिति को, उसकी सोच को और उसकी समझ को, उसके सामाजिक एज वेल एज उसके शैक्षिक संदर्भ को बहुत अच्छी तरह से कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि एवरीबडी इज कमिंग टू अस, वी वर अराउंड 180 स्टूडेंट्स इन द MSc बैच, बट नॉट एवरीबडी हैड द सेम kind of experiences. Why I am taking the example of MSc batch is कि थोड़ा डिफरेंट था वो, मतलब सब लोग अलग अलग कॉलेजेस से आए थे, हम सब कहने को हम सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में पढ़ रहे थे, पर हमारे अंदर एक डाइवर्सिटी थी। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के या उसके बाहर के
अलग अलग कॉलेजेस से आए थे, और हमारा जो साइको सोशल पर्सपेक्टिव है वो बहुत डिफरेंट था। डिस्पाइट द फैक्ट हम सबको पढ़ना एमएससी फिजिक्स से था, लेकिन हमारी जो डायमेंशन है हमारे पर्सनहुड के वो बहुत डिफरेंट थी। तो कहीं ना कहीं वो लिव्ड एक्सपीरियंसेस हम लेकर आते हैं अपने क्लासरूम्स के अंदर, और वो हमारी समझने, सोचने और फिर देन उसको प्रस्तुत करने की, यानी कि उसको प्रेजेंट करने की एबिलिटी को सिग्निफिकेंटली उसके अंदर इम्पैक्ट करते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह के अकम्पलिशमेंट्स रहे हमारे, अगर किस तरह का एब्यूज रहा तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हमारी पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करता है। कम्युनिटी एक्सपीरियंसेस किस तरीके के हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम किसी विशिष्ट कम्युनिटी से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी ट्राइबल कम्युनिटी से आ रहे हैं, या हम किसी स्पेसिफिक कास्ट कम्युनिटी से आ रहे हैं जहाँ से हमको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, हम किसी स्पेसिफिक स्टेट से आ रहे हैं जो हमको आइडेंटिफाई किया जा रहा है उस तरीके से, और लगभग फिर हमको उसी टोकनिज्म के तहत हमें आइडेंटिफाई किया जाता है, टैगिंग होती है, या ऐसा माना जाता है फलाने परिवेश से आ रहे हो तो ऐसे ही होगे। तो कम्युनिटी एक्सपीरियंसेस जो बाकी लोगों को होते हैं वो हमारी कम्युनिटी आइडेंटिटी को एक टोकनिज्म के साथ लोगों के साथ प्रेजेंट करते हैं, और वो हमें हमारी आइडेंटिटी को हमारी कम्युनिटी से अलहदा करके देख ही नहीं पाते। तो यानी कि हमें मौका ही नहीं मिलता इस बात का कि लोग हमें समझें, वो अपने ही प्रीकंसीव्ड नोशन उनके जो उस पर्टिकुलर परिवेश के बारे में होते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में होते हैं, वो उसी के हिसाब से हमारे को भी मान लेते हैं और हमें आगे लेके चलते हैं, और ये एक बाधक बनते हैं, किस तरह के बैरियर्स क्रिएट करते हैं चीजें इन ओवरऑल प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटी इन दैट कॉन्टेक्स्ट। फैमिली सपोर्ट किस तरीके है इसके बारे में पहले बात कर चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा इसके बारे में दोबारा खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है, बट हमारे होने, जो हमारे अस्तित्व है, जो हमारा व्यक्तित्व है, उसके अंदर परिवार की विशिष्ट भूमिका रहती है। परिवार होता है तो भी उसकी भूमिका रहती है, परिवार नहीं होता तो भी उसकी भूमिका रहती है। सो फैमिली सपोर्ट इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनहुड। इंटर एज रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एक शैक्षिक संदर्भ में, एक एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में। हम किसी भी, आज भी हम जो यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे, हम इस बात को समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है इंटर एज जो हमारा रिलेशनशिप है वो हमें किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है और हम कैसे इसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं। हम अलग अलग उम्र के लोग यहाँ पे इकट्ठे बैठे हुए हैं। ओपन स्कूल है तो हमारे को इसमें स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही एज ब्रैकेट के हैं। स्टूडेंट्स के अंदर भी एज की डाइवर्सिटी है। स्टूडेंट्स और अगर हम तीन ही अभी इस समय कंपोनेंट ले लें, स्टूडेंट, रंजन और मैं, हम तीनों अलग अलग एज ब्रैकेट को बिलोंग करते हैं। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम एक स्कूल के संदर्भ में बात करते हैं, मैंने अक्सर ये सवाल लोगों से पूछते चलता है कि स्कूल में किस उम्र के लोग होते हैं, तो लोग बोलते हैं कि 6 साल से लेकर और 18 साल की उम्र तक। देन आई सेड कि बस यही तो समझ, ये यहाँ पर हम लिमिट हो जाते हैं, स्कूल के अंदर और कोई लोग नहीं होते। फिर वो सोचना शुरू करते हैं और फिर पता चलता है कि स्कूल में 6 साल की उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक के लोग होते हैं, जो कि कॉलेज में आके हम ये मान सकते हैं कि 18 साल से लेकर 65 साल तक की उम्र के लोग होते हैं। डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कैपेसिटी में लोग उसके अंदर एंगेज रहते हैं। सो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये समझना इंटर एज रिलेशनशिप हम कैसे समझेंगे एक स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में, एज वेल एज in the context of an educational institute. So diversity जो age variation की वजह से आती है, उसके inclusion के लिए क्या हम तैयार हैं, या उसके बारे में हमें किसी बात की अभी भी संशय है उन चीज़ों को लेके। Gender perspectives in education, we know about gender perspectives. We know that अभी जो एक तरह का संघर्ष चल रहा है वो संघर्ष की कहीं ना कहीं महिलाएं कौन से कोर्स में आएंगी, कौन से कोर्स में नहीं आएंगे। अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लिस्ट निकलने वाली है, देखिएगा कि कुछ कॉलेजेस में जो विमेन स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, उनको 2% का रिलैक्सेशन मिलेगा या 1% का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो वहाँ पर वो मसला है, और वो क्यों है कहने में तो अजीब लगेगा, लेकिन है समस्या। अभी भी लड़कियों की एजुकेशन को लेके खासी समस्या है। तो जहाँ हम अभी
पुरुषों और महिलाओं यानी कि लड़के और लड़कियों की एजुकेशन को लेके ही क्वेश्चन मार्क रेज कर रहे हैं, वहाँ जब हम अदर्स के बारे में बात करते हैं या जब हम थर्ड जेंडर के बारे में बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम किस तरीके से उस पूरी सोच को या उस पूरी समझ को अपने सामने रखते हैं या उसको आगे लेके चलते हैं। तो इसीलिए ये जो स्लाइड है इसके ऊपर जेंडर पर्सपेक्टिव्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर विमेंस एजुकेशन के बारे में चर्चा नहीं है, बिकॉज ऑल जेंडर should have access to higher education or education at any pedestrian, and there are specific gender perspectives in the entire conversation that is required. अब हम जेंडर रोल्स को, क्योंकि वो सामाजिक तौर पे कहीं ना कहीं फिक्स कर दिए जाते हैं, उसी के साथ हम जोड़ लेते हैं कि इस व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई करने की, एजुकेशन में आने की आवश्यकता है कि नहीं है। यदि एजुकेशन में आना है तो उसको कितने स्तर तक, एजुकेशन के कौन से स्टेज तक पढ़ना है। ये जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, इन्हीं को चैलेंज करने की बात हम जेंडर के पर्सपेक्टिव में सामने लेकर आ रहे हैं। स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। यदि बहुत सारी जगहों पे साइंस और मैथमेटिक्स को लेकर जेंडर स्टीरियोटाइप्स टूटे हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आज भी वो स्थापित हैं। दिल्ली सरकार के तहत बहुत सारे ऐसे लड़कियों के स्कूल हैं जिनके अंदर 11th-12th में साइंस का प्रोविजन ही नहीं है, और वहाँ पे कोर्सेज लाइक ब्यूटी कल्चर एंड होम साइंस एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स ऑफर होती हैं। तो ये मैं आपको एक स्टडी की वजह से ही बता रही हूँ। यूजीसी का एक प्रोजेक्ट किया था 2012 में, जिसमें इस तरह का डेटा हमारे सामने आया। तो हमें समझना है कि स्टीरियोटाइपिंग आज भी सिस्टमिक लेवल पे प्रेजेंट है, और उसके वजह से जो बराबरी का अवसर है वो सभी को नहीं मिलता है। कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, इसको काउंटर करने के लिए कि क्या हम समुदाय को इस बात के लिए संवेदनशील कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को जो शिक्षा है वो व्यक्ति विशिष्ट मसला है, किसी जेंडर से जुड़ा हुआ नहीं है, उस तरीके से सामने नहीं आना चाहिए। आवर स्ट्रगल, वी नीड टू डू दैट मोर एम्फैटिकली इन अ मोर फोकस्ड मैनर। पॉलिसीज जो है क्या वो हमारी जेंडर न्यूट्रल हैं या नहीं है, हमें समझना पड़ेगा। और दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ जो अहम सवाल आता है कि क्या पॉलिसीज को जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। हम ये कह तो देते हैं कि सभी के लिए समान अवसर हैं, लेकिन सभी के लिए यदि कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन नहीं है तो हम ये समझ के चलें कि सभी के लिए समान अवसर नहीं है। कुछ केसेस में हमें सोशल कॉन्टेक्स्ट ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जो ज़्यादा इंक्लूसिव हो। हमें स्कूल एथॉस, इंस्टीट्यूशनल एथॉस के ऊपर ऐसी बात करनी पड़ेगी जहाँ पे हम विशिष्ट जेंडर के लिए भी हर तरह की मनस्थिति के साथ साथ परिस्थिति भी तैयार करें। तो मनस्थिति और परिस्थिति दोनों का, यानी कि रिसोर्सेज का, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का और मेंटल बैरियर्स को बराबरी से एड्रेस करना आवश्यक है, सो दैट हम इसके अंदर आगे चल सकें। बहुत ही छोटा सा उदाहरण इसके संदर्भ में देना चाहती हूँ कि काफ़ी सारी स्टडीज़ ने हमें ये बताया कि लड़कियाँ अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने के बाद स्कूल से ड्रॉप आउट करती हैं फॉर द सिंपल रीज़न कि स्कूल के अंदर प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं होते हैं, और वो अपने आप को एक तरह के उनको जिसको बोलते हैं हिचकिचाहट होती है या संवेदना नहीं सॉरी, या उनको हिचकिचाहट होती है या वो वहाँ जाके अपने आप को कैसे संभालेंगे, इसके बारे में उनकी तैयारी नहीं होती है। इवन फॉर समथिंग एज स्मॉल एज स्पॉटिंग जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे हो जाती है, उसको लेके भी सामाजिक संवेदना नहीं है कि बाकी लोगों को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो बच्चियां शर्मसार ना हो, वो किसी भी तरीके से परेशानी का शिकार ना हो, तो इसके लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि टॉयलेट्स का होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सोशल बिलीफ का होना कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसको लेके हमें मदद करने के एटीट्यूड में ज़्यादा आना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी का मजाक उड़ाएं या उनको शर्मसार करें। तो इस तरह के जो मसले हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं जो जेंडर बेस्ड एक्सक्लूजन को कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं। महिलाओं के केस में काफ़ी चर्चा होती है, लेकिन इसको हमें विशिष्ट तौर पे समझने की ज़रूरत है फॉर थर्ड जेंडर एंड अदर्स जिनके बारे में हम बात करते हैं। There are many other discriminatory factors in the case of inclusion when we are talking about inclusive perspectives, and these include what do we say, discriminatory factors like physical well-being and I'm sorry, I'm just looking at the program. How much time do I have? Okay, 12:10. Yeah. Okay.
So physical well-being is yet another factor जो हमारे को discriminate करता है. हम notional form में इसको people with disability के नाम से हम इसको identify करते हैं इस group of students को या इस group of people को. उसमें physical well-being को लेके काफ़ी जिसके बारे में चर्चा है और positive जो discussions हैं वो अभी चल रही हैं इस point of time पे. फिजियोलॉजिकल एज वेल एज न्यूरोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल माने अगर किसी भी व्यक्ति को सेंसरी इम्पेयरमेंट है, विजन बेस्ड, हेयरिंग बेस्ड, लोकोमोटर बेस्ड, ऑल दोस काइंड ऑफ फिजिकल वेलबींग. एंड न्यूरोलॉजिकल स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, पीडीएफ है, आई विल नॉट बी एबल टू करेक्ट इट, बट इन 2 ओ के बीच में एक एल होना चाहिए. सो न्यूरोलॉजिकल इज द वर्ड. आप ये मत मान लीजिएगा कि मेरी पीपीटी में है तो ये भी कोई नया शब्द है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ध्यान रखिएगा इसका. न्यूरोलॉजिकल शब्द है जिसके तहत हम जो हमारा जो इंटरनल मोटर सिस्टम है उसके कनेक्टिविटी के बारे में जो भी हम बात करते हैं, या फिर जब हम हमारे न्यूरॉन्स के डिफरेंटली फंक्शन करने के बारे में बात करते हैं तो उसकी पूरी चर्चा जो है वो न्यूरोलॉजिकल वेलबींग में आती है. बहुत सारी चीज़ें जैसे कि बहुत सारी स्टेट ऑफ बीइंग, यू नो, फॉर एग्जांपल सेरेब्रल पॉलिसी या फिर ऑटिज्म या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे न्यूरोलॉजिकल वेलबींग के अंदर आती है. यहाँ पे हम ये कहते हैं कि हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम अंदर का जो है सर्किट अलग तरीके से कनेक्टेड है. प्लीज़ उसको सेम तरीके से मत देखिए जैसे कि बाकी और बच्चों के बारे में चर्चा होती है. सो डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर में फिजिकल वेलबींग एक इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल फिजिकल फैक्टर है. सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम सबको समझने की आवश्यकता है. एंड व्हाट डू आई मीन बाय सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी, इसको अगली स्लाइड में मैं लेकर आऊँगी आपके सामने. बट इसका मतलब है कि हम सभी जो हमारा सामाजिक परिवेश है वो अलग अलग होता है. हम किस भारतीय संदर्भ में, यू नो, यदि हम देखें तो हम ये समझ पाते हैं कि रीजन्स जो है वो अलग अलग है, यानी कि स्टेट अलग अलग है तो रीजन्स अलग अलग हो जाते हैं. रीजन्स, हर एक रीजन की एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन है, हर एक रीजन की एक खूबसूरती है और वहाँ के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ वहीं मिलेंगी और कुछ ऐसी हैं जो वहाँ कतई नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगी. तो आई थिंक इस बात को समझना, सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी को समझना इम्पॉर्टेंट है. लेकिन एक ही रीजन के अंदर जो नेबरहुड्स हैं वो मल्टीपल हैं. ऐसा नहीं है कि यदि हम एक ही किसी जगह की बात करते हैं तो उसके अंदर जो सामाजिक परिवेश है उसके अंदर किसी तरह का होमोजीनियस एनवायरनमेंट है, वो भी उसके अंदर भी एक हेट्रोजेनिटी है और वो हेट्रोजेनिटी एक अलग तरीके से हमारे सामने आती है और उसको हम आगे लेके फिर चल सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं. उसके बाद सोशल क्लास जो है, यानी कि जो इकोनॉमिक स्टेटस है बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का, वो उसको डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम अदर्स एज वेल. तो ये बाकी तमाम फैक्टर्स हैं जो इसको कहीं ना कहीं लेकर आते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं. जब हम मेन स्ट्रीम की बात करते हैं, जब हम मुख्य धारा की बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या हम मुख्य धारा को किसी परसेप्शनल वे में ले रहे हैं कि हाँ इस तरह की फीचर्स होंगे तो वो मुख्य धारा होगा. तो मुख्य धारा में व्यक्ति विशिष्ट फीचर्स को हम लेकर आए या मुख्य धारा के अपने कुछ फीचर्स बना दें और बोलें कि यदि आपको मुख्य धारा का हिस्सा बनना है तो ये सब आपके अंदर होना चाहिए. आपकी जो डायलेक्ट है वो नहीं चलेगा, बोली नहीं चलेगी, आप हिंदी इसी तरीके से बोलिए या आप कोई भी और भाषा इसी तरीके से बोलिए, डायलेक्ट आपका नहीं चलेगा. तो ये जो समझ है मुख्य धारा की, इसको भी इसके ऊपर भी पुनर्विचार करने की और फिर इसे पुनर्निर्मित करने की बहुत आवश्यकता है जिससे कि हम इसको लेके आगे चल सकें. सो एक्सेस, रिटेंशन एंड प्रोग्रेशन, कौन बच्चा या कौन व्यक्ति सिस्टम के अंदर आता है, वो उस सिस्टम के अंदर कितने समय तक रिटेन्ड रहता है और वो उस सिस्टम के अंदर कितना आगे बढ़ पाता है, ये सब हमारी मुख्य धारा की संकल्पना पे आधारित होता है. यदि हम मुख्य धारा को एक स्पेसिफिक चीज़ की तरह लेके चलेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे समुदाय जो
में फिट नहीं होते हैं वो उससे बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए बजाय इसके कि हम लोगों को एक सिस्टम में फिट करने की कोशिश करें, लोगों सिस्टम को अपने आप को ज़्यादा विस्तृत, ज़्यादा इलेबोरेट तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए। डाइवर्सिटी को, उसको विभिन्न एस्पेक्ट्स में डाइवर्सिटी को इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि जो डाइवर्स आइडेंटिटी फैक्टर्स हैं एक व्यक्ति के, वो उसके एक्सक्लूजन में कहीं काउंट ना करें, बल्कि सिस्टमिक प्रोसीजर पे हम उस रेंज ऑफ फीचर्स को अपने साथ लेके चलें, उस डाइवर्सिटी को अपने साथ लेके चलें और हम इंक्लूजन के पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करें। ये जो एक रिलेशनशिप है, जो मुझे लगा कि यदि आप एजुकेशन के स्टूडेंट हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर समझ होनी चाहिए। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है, कास्ट, क्लास और जेंडर। और ये रिलेशनशिप इसलिए कॉम्प्लिकेट होता है हमारे लिए क्योंकि हम यहाँ पे डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। यदि हम किसी और सोशोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते तो हमारा और भी जो फैक्टर्स हैं वो हम इसके अंदर लेकर आ सकते थे, क्लासरूम में हम अलग चीज़ें लेकर आ सकते थे। लेकिन कास्ट, क्लास और जेंडर की जो अपनी मैट्रिक्स है और जो इसका फ्यूजन होता है निकल के, वो कहीं ना कहीं लेवल्स ऑफ इंक्लूजन को भी तैयार करता है। यानी कि जो हम जिस पूरी समझ की, जिस हम क्लासरूम की अगर बात कर रहे हैं या हम एक इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर किस तरीके से यदि आप लो इकोनॉमिक क्लास से हैं लेकिन साथ में आपका कास्ट फैक्टर जो है वो भी आप कास्ट में जो है डिसएडवांटेज कास्ट से आते हैं और उसमें भी आप यदि एक महिला हैं तो एक लेवल ऑफ हायरार्की उसके अंदर सेट हो जाता है कि किस तरीके से हम उस पूरे संदर्भ को समझते हैं और आगे लेके चलते हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, बट हमें, क्योंकि हम एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, तो हमें इस रिलेशनशिप को अपने सामने लेकर आना और समझना और किस तरीके से ये एक्सक्लूजन के पूरे प्रोसेस में कैटेगरीज क्रिएट करता है और हर एक फैक्टर हमें फर्दर एक्सक्लूड करता है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझना हमें इसलिए आवश्यक है जिससे कि जब हम इंस्टीट्यूशंस में, जब हम सिस्टमिक लेवल पे डाइवर्सिटी बेस्ड इंक्लूजन की बात करें तो हम समझ पाए इन सारे निटिग्रिटीज को और हम इन सबको अकाउंट फॉर करके अपने इंस्टीट्यूशनल एथॉस को रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। वेरी इंपॉर्टेंट, very essential for us. This is another important aspect of inclusion or exclusion. हालांकि मैंने इसके बारे में काफ़ी समय से बातचीत करती आ रही हूँ, लेकिन यकायक जो पिछले 1.5 साल में हो गया हम लोगों के साथ, 1.25 साल में, 1.5 साल में कोरोना के तहत, उसने इस मसले को और ज़्यादा अहम कर दिया है कि हम सभी लोग जो एजुकेशन के संदर्भ में खासकर जो हम एक डिजिटल वर्ल्ड का हिस्सा बने, या फिर यूँ कहें कि लॉकडाउन के बाद जब लोग घरों में रहे और उन्होंने अपने साथी को अपने डिजिटल वर्ल्ड में ढूंढना शुरू किया, तो एक अलग तरह की सामाजिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई। मुझे याद है मेरे घर में कुछ एक युवा व्यक्ति हैं, वो एलेक्सा जो डिवाइस है उसको खरीद के लाए वो, और बड़ा खुश थे। वो कह रहे थे देखिए अब ये देखिए हम एलेक्सा को ऐसा बोलेंगे ऐसा होगा, ऐसा बोलेंगे ऐसा होगा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम इस डिवाइस को लेकर क्यों इतने प्रसन्न हो, क्योंकि तो बोला नहीं अच्छा है, देखो अब सहूलियत है, ये है वो है। तो एक तो उसमें से आलस्य का प्रश्न परिवार के कुछ लोगों ने निकाला, लेकिन मेरे लिए एक बहुत अहम प्रश्न जो मैंने उसको कहा नहीं, उस युवक को कहा नहीं, लेकिन क्योंकि परिवार का युवक था तो समझना उसके लिए शायद मुश्किल होता, लेकिन ये एक बहुत अहम बात थी कि वो जो कह रहा था एलेक्सा वो कर रही थी, एलेक्सा उसको काउंटर नहीं कर रही थी। तो वो उसकी बात मान पा रहा था, उसका जो इंटरनल ईगो था वो उसका सेटिस्फाई हो रहा था कि देखा मैंने कहा और हो गया, मैंने इसको ये कहा ये हो गया, ये मेरी बात को मानती है, ये इसको काउंटर नहीं करती है। और मेरे को ये भी प्रॉब्लम है कि चाहे हमने सीरी बनाया, चाहे हमने एलेक्सा बनाया, हमने उसका जो नामकरण है वो महिला के संदर्भ में ही क्यों किया। ऑर्डर्स फॉलो करने हैं तो महिला होनी चाहिए, या पोलाइट है तो महिला होनी चाहिए। तो ये एक जो पिंक कॉलर जॉब्स के बारे में चर्चा होती है कि रिसेप्शनिस्ट की जो जॉब है वो लड़कियों को करनी चाहिए, जेंडर स्पेसिफिसिटी जिसके अंदर हम लाते हैं। आई थिंक एक अहम मसला मेरे लिए था कि किस लिए एलेक्सा और सिरी जैसे जो डिवाइसेस हैं वो पॉपुलर होंगे और उसमें महिलाकरण उनका क्यों किया गया, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी था। तो आई थिंक ये कुछ क्रिटिकल चैलेंजेस हैं
जिसके अंदर challenges of being surrounded by the virtual world, at the same time health concern which are physical and mental health concerns which are important. हम सब इसके बारे में बहुत सुन रहे हैं, चर्चा हो रही है, खुद हम इनको महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम इस पे मैं इसको सिर्फ एक डायमेंशन की तरह आपके सामने रखना चाहती हूँ, पर एक महत्वपूर्ण डायमेंशन की तरह ये हमारे सामने रहेगा फॉर टाइम्स टू कम ऑन. सो एजुकेशनल वेरिएंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहा कि जो सीखने और सिखाने की पूरी प्रक्रिया है, जैसा कि शुरू में ही मैंने कहा बातचीत शुरू करने से पहले कि मैं आदतन एक इंटरैक्टिव माहौल में रहने की मुझे आदत है, तो 1-1.25 घंटा मैं अकेले बोलती रहूँगी, बहुत बोझिल हो जाती थी. लेकिन अभी क्योंकि स्टूडेंट्स अब तक पार्टिसिपेटिव मोड में रहते हैं, हमारा पेडागोजी हमारे क्लासरूम में मेरा ऐसा रहता था कि हम पार्टिसिपेटिव पेडागोजी में बिलीव करते हैं, तो हम सब लोग जितने भी क्लास में लोग हैं वो अपने साझेदारी से ही उस पूरे डिस्कोर्स को, पूरे आइडिया को इवॉल्व करेंगे और फिर हम उसको फाइनलाइज करेंगे. तो ये रहता था. तो अब लेकिन जब हम इस तरह के मोड में शिफ्ट हुए जहाँ पे सीखने सिखाने के जो पूरे प्रोसेसेस थे वो बदल गए, प्रक्रियाएं बदली, तो उसके साथ में फिर हमें भी बदलना पड़ा और इस तरह की इवॉल्विंग नेचर आई निकल के. एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर था वो रहा कि डिजिटल एक्सक्लूजन को लेके कि जिन लोगों के पास डिजिटल मीडियम्स नहीं थे, जिनके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम नहीं है, वो कैसे जुड़ेंगे इस माध्यम के साथ. जस्ट एक उदाहरणार्थ तो ये एक बहुत मसला था. कल के दिन में मैंने बहुत स्ट्रगल किया कि मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम के द्वारा कैसे जुड़ूंगी, बिकॉज बहुत फ्रीक्वेंटली इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं. तो माध्यम डिजिटलाइज होने की वजह से एक अलग तरह के चुनौतियां जो हैं और संघर्ष हमारे सामने रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमें इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है. Another complex relationship is between teacher student जो है अपने आप में, क्योंकि हम स्टूडेंट डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट है वो अपने आप में इन सब के बीच में घिरा रहता है. मेरा जो हमेशा जो मेरे साथी भी मुझसे नाराज होते हैं जिस बात पे, वो यही रहता है कि तुम हमेशा स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से क्यों सोचती हो. तो मैं सोचती सबके पर्सपेक्टिव से हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेन जो फोकस है, जो प्रमुख जो है, जो आइडिया है, वो स्टूडेंट से जुड़ा रहना चाहिए. और हम सब यहाँ पर हैं स्टूडेंट की वजह से, तो जो वजह है उसको कायम रखना और उसके बारे में गंभीरता से सोचना बहुत आवश्यक है. सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैमिली एंड पेरेंट्स एंड टीचर्स से जुड़ा रहता है. ऊपर की डिस्कशंस में मैंने इन चीज़ों के बारे में आपको समझाया है, लेकिन स्टूडेंट जो है वो अपने आप ही बहुत एक विशिष्ट परिस्थिति में रहता है और इसको हमें समझना ज़रूरी है. एक छोटे से उदाहरण के साथ इसको फाइनल करूँ, इसको बात करूँगी जिससे कि हम समझ सकें और आगे की बात भी मैं अपनी जारी रख सकूं. 4 या 5 मिनट और बचे हैं मेरे पास. कि ये जो हमारा स्टूडेंट्स, मेरे लास्ट वीक ये बात हो रही थी कि हमें असाइनमेंट सबमिट करने हैं, तो फाइनल डेट क्या रहेगी असाइनमेंट की. तो उन्होंने बोला कि आदतन काफ़ी चीज़ें बदली हैं उन्होंने, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी नहीं बदली हैं. तो उन्होंने आदतन मुझसे ये पूछा, एमएड के स्टूडेंट से, बोले कि आप आखिरी डेट बता दीजिए जिस दिन हमें ये असाइनमेंट सबमिट करनी है, आप लास्ट डेट आप डिसाइड कर दीजिए. तो मैंने उनसे पूछा, देखिए मैं लास्ट डेट अपने हिसाब से डिसाइड करूंगी, इज इट राइट? कहते हैं यस. मैंने कहा फिर आपके लिए वो बाध्यता हो जाएगी? बोले हाँ. तो मैंने कहा मैं नहीं जानती हूँ कि आपको किस टीचर ने बाकी कितने असाइनमेंट्स दिए हैं, तो आप अपना आपस में जितने स्टूडेंट्स हैं पहले बात कर लीजिए, अलग अलग सेक्शन के होते हैं. तो मैंने कहा आप लोग पहले बात कर लीजिए कि आपके बाकी सारे असाइनमेंट्स को दिमाग में रख के, किसी के घर परिवार में कोई विशिष्ट परिस्थिति हो उसको दिमाग में रख के आप कब तक कर सकते हैं, लेकिन मुझे 1 हफ्ते पहले जमा कर दीजिएगा, उससे पहले जो आखिरी डेट आपके हमारे असेसमेंट सबमिट करने की हो, क्योंकि 1 हफ्ता तो मैं भी लूँगी उनको पढ़ के और उसको सबमिट करने के लिए. तो स्टूडेंट जो है वो वही बात है कि मुझे अपना ही विषय पढ़ाना है, लेकिन उसको सारे विषय पढ़ने हैं, और ये अक्रॉस द लेवल्स होगा. स्कूल में भी ये परिस्थिति रहती है और आगे भी ये परिस्थिति रहती है, कॉलेज में भी इसी तरह की परिस्थिति रहती है. तो स्टूडेंट जो है वो एक विशिष्ट परिस्थिति में होता है, और इसके लिए इस रिलेशनशिप को हमें समझना और हम किस तरीके से स्टूडेंट को इंक्लूड कर सकते हैं एज पार्ट ऑफ पार्टनरशिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. पॉलिसी बहुत क्रिटिकल है हम लोगों के लिए.
कभी यदि मौका रहा तो इंक्लूजन को किस तरीके से पॉलिसी प्रमोट कर रही है इसके बारे में ज़रूर चर्चा रखिएगा। लेकिन NEP 2020 ने एक स्पेसिफिक एम्फेसिस दिया है इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर। अपनी पहली लाइन में ही वो ये बात कहते हैं कि इंक्लूजन होना बहुत आवश्यक है। इक्विटी, डेमोक्रेटिक सेटअप्स के बारे में पहली लाइन पे ही बात होती है, जो ओपनिंग सेंटेंस है पॉलिसी का। इसके अलावा इक्वी बेस्ड एजुकेशन को एक वैचारिक या एक फ्रेज की तरह इस्तेमाल ना करके उसको हम किस तरीके से अपनी कवायद में जोड़ सकते हैं, किस तरीके से हम उसको अपनी प्रोसेसेस में हम उसको जोड़ सकते हैं, उसके लिए जो फॉर्मल अनाउंसमेंट हुई है स्पेशल एजुकेशन जोन्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है। हायर एजुकेशन को लेके जो टीचर ऑटोनॉमी की बात हुई है, उसके अलावा स्कूल टीचर्स को लेके जो ऑटोनॉमी की बात हुई है, स्पेशल एजुकेशन के पूरे सेगमेंट में जो चर्चा रही है पॉलिसी को लेके, ICT को इंक्लूसिव बनाना है उसकी जो चर्चा रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग पढ़ें उसको तो आप देखेंगे कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसमें से तकरीबन 70 से 80% प्रिंसिपल जो हैं वो डेमोक्रेटिक सेटअप एंड इंक्लूजन एंड इक्विटी की बात करते हैं। सो एक अहम एम्फेसिस देके पॉलिसी को बनाया गया है। अब वेरी प्रॉमिसिंग आइडिया। आई एम जस्ट कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस के जब हम इसके इम्प्लीमेंटेशन प्लान के ऊपर आए तो इसके अंदर जो भी वैचारिक स्तर पे चर्चा की गई है हम उसको रिटेन कर पाएं at the ground level also. So what are the key features in our discussion that we have had today? You know, one of the biggest key feature is कि हम जो मेन स्ट्रीमिंग के आइडिया को हम क्रिटिक करें, हम उसके अंदर किसी विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को डेवलप करने की कोशिश ना करें लोगों के अंदर, क्योंकि उससे स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ हम मूव करते हैं। हम डाइवर्सिटी को, स्टूडेंट स्पेसिफिक डाइवर्सिटी को ध्यान में रखें, हम कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक डाइवर्सिटी को ध्यान में रखें और उसी के हिसाब से हम इंस्टीट्यूशनल एथॉस के अंदर एक इंक्लूसिव एटीट्यूड लेकर आएँ। डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करें एंड वी मस्ट बिलीव इन डेवलपिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। ये जो पूरा मसला है कि यदि आप में से उम्र में छोटे हो तो मैं डिसरिस्पेक्टफुल हो सकती हूँ, यदि आप ओहदे में छोटे हो तो डिसरिस्पेक्टफुल हो सकती हूँ, यदि जेंडर अलग है तो डिसरिस्पेक्ट। हम दूसरे व्यक्ति की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए बहुत सारे कारण हमने जोड़ लिए हैं और उन सब कारणों को दरकिनार कर यदि मैं एक नेचुरल ह्यूमन इकोनॉमी या मैं अपने नेचुरल इकोसिस्टम का हिस्सा हूं तो एक इज्जत का लहजा मेरा एक दूसरे के लिए रहना चाहिए। और जब हम नेचुरल इकोलॉजी की बात करते हैं तो उसके अंदर मानवीय संदर्भ से बाहर जाके हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं, एनिमल किंगडम की बात करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम नेचुरल इकोलॉजी की भी बात करते हैं, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट, पानी, ऑल यू नो, एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, जितनी भी चीज़ें, तो जितनी भी वो चीज़ें जो हमारे संदर्भ में प्रस्तुत हैं, प्रेजेंट हैं, हम उन सब को उन सब के लिए एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का मसला रख सकें, तो ये शायद एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिलीफ सिस्टम और हाईएस्ट लेवल ऑफ वैल्यू है जो हम किसी के अंदर लेके आ सकते हैं। सो as an ethics, as universal ethics, I think we are very I'm proposing this as a universal ethic that despite the fact we are all different from each other on different forums, but we develop this idea of mutual respect. We understand that हमारे ideas अलग-अलग हो सकते हैं, we understand that disagreements should not lead to you know, disrespect, and this is the kind of a basic belief system that we should talk about. This is obviously this is the last slide जहाँ पे सब चीज़ों को कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई है, बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन। बच्चों के संदर्भ में उनके लर्निंग स्टाइल्स, इंडिविजुअल पोटेंशियल्स एंड नीड्स, उनके लिव्ड एक्सपीरियंस बहुत अहम एक फोकस रखते हैं। फैमिली के संदर्भ में पैरेंटल एक्सपेक्टेशन, फैमिली कम्युनिटी रिलेशनशिप, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फैमिली, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल के संदर्भ में स्कूल एथॉस, स्कूल करिकुलम, पेडागोजिकल प्लानिंग इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, co-curricular activities, students partnership in school activities, teachers continuous professional development and inclusive environment in school. Everything is absolutely important when we are talking about diversity and inclusion. Laws and policies में revisiting legal references, as I have discussed in one of the slides, कि किस तरीके से legal preposition में एक बच्चे को अलग अलग तरीके से समझा गया है। Critical review of multiple policies for same age group, एक जो मैंने कहा कि
सेम एज ग्रुप के बच्चों के लिए क्या अलग अलग हैं, और पॉलिसीज अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स विच ऑल्सो हैव मेंशन access, retention and progression, and the contribution of policies to this entire process needs to be very deliberately looked upon. This is something which don't consider me a great propagator of Gandhian philosophy, but I do have a lot of respect for the gentleman, for somebody who has tried to tell us that जीने का ये तरीका भी हो सकता है. तो with lot of respect, I'm quoting Gandhi ji here, that you must be the change you wish to see in the world. अगर हम inclusion को देखना चाहते हैं अपने चारों तरफ, तो शायद हमारे लिए अहम है कि हम इस inclusion की पूरी प्रक्रिया को आत्मसात करें, हम इसके साथ खुद आगे चलें. I hope to continue my journey to learn from the interactions with all of you. A very big thank you to all of you, and I look forward to the interactions that we'll have now. जी, रंजन जी, क्या मैं टाइम पे खत्म कर पाई? Yeah. Thank you, ma'am, for confining this. We know this topic, student diversity and inclusion, has so many things to discuss, and as we are connected with the live mode, so somehow we are not able to interact with each other, but there is a medium, that question answer section. So I will take up questions on behalf of student, and I will raise those questions to you, ma'am, and I hope this will at least make you happy that somewhere you are able to interact with student by this medium only. Because I personally know the tradition we are doing in CI also, that we always happy to discuss in our class rather than giving lecture for 1 hour or 2 hours like this. So ma'am, the first question is like, do we think that educational institutions are really inclusive in today's society, or just we are saying that we are moving towards an inclusive education? See, educational institutes are definitely very inclusive at this point of time. यदि मैं 1986 की बात करती हूँ, जब मैं इसको कॉलेज के अंदर आई थी, या मैं उससे पहले की बात करती हूँ जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो मैं बहुत सारी जगह के, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे वहाँ पर होते ही नहीं थे. The students were not there at that point of time. बहुत सारे सेगमेंट से स्टूडेंट नहीं होते थे. जो जब मैं पढ़ाने आई तो मुझे ये समझ में आया कि बहुत सारी जगहों के बच्चे अब मुझे देखने को मिल रहे हैं. डाइवर्सिटी क्लासरूम की जो मैंने एज अ टीचर एक्सपीरियंस करी है, वो मैंने एज अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस नहीं करी थी. तो अगर मैं 70 के दशक से लेकर 2020 तक के दशक की बात करती हूँ, जो मेरा पूरा स्पैन रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ, तो आई थिंक द इंस्टीट्यूशंस आर डेफिनेटली इंक्लूसिव. बट हम इस बात को समझें कि इंक्लूजन के जो नए नए आयाम है ना, न्यू डायमेंशन हमेशा अराइज होते रहेंगे. तो हम कभी भी ये बोले कि हम फुल्ली इंक्लूसिव है, वो नहीं होगा. तो वो हमको समझना पड़ेगा कि हमारा जो संघर्ष है टुवर्ड्स इंक्लूजन वो हमेशा रहेगा. अगर मैं ये बोलूं कि हमने तो RPWD एक्ट निकाल दिया 2016 में, तो हम तो इंक्लूसिव हो गए विद रिगार्ड टू पीपल विद डिसेबिलिटी. देन अचानक ही 2019 में 20 में कोरोना आ जाता है, और हम अगेन ये बात कर रहे हैं कि अब हम कैसे जो पीपल विद डिसेबिलिटी हैं या जो इकोनॉमिकली डाइवर्स स्टूडेंट हैं, हम उनको कैसे जोड़े. अब क्लासरूम के साथ डिजिटल माध्यम आ गया. तो चुनौतियां इंक्लूजन को लेकर हमेशा अलग अलग तरीके की जुड़ी रहेंगी. हमारे सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस जो हैं वो हमेशा बदलती रहेंगी, और इंक्लूजन के नए डायमेंशंस हमेशा हमारे सामने आते रहेंगे. लेकिन जागरूकता होना हम सबके लिए, और कॉन्शियसली हमें ये समझना कि अभी एक्सक्लूजन हो रहा है, और ये वाले एस्पेक्ट में इंक्लूजन हो गया बट इधर अभी बचा है, तो वो उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग रहना, वो काम हम सब लोगों का है जो आज इस फोरम पे साझा बैठे हैं. चाहे मैं पढ़ा रही हूँ, चाहे सर पढ़ा रहे हैं, या चाहे आप लोग आके पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं, ये हम सब लोगों की एज अ कलेक्टिव एक जिम्मेवारी है कि हम इसको हमेशा आइडेंटिफाई करते रहें और हमेशा इसको एक डिफरेंट लेवल तक लेके जाते रहें. जी. थैंक यू मैम. Ma'am, another question is, during your talk, you talked about the age criteria for male and female in the context of marriage. So one of the participants' question is like, so is it creating a gender discrimination, because 18 is the criteria for female, 21 is the criteria for male children. So according to that, we are creating a gender discrimination. That was the question. Absolutely so. We are creating a gender discrimination in that point of time. I tell you, बहुत ही ना मजेदार एपिसोड है कि इस तरह की बातें जब भी चलती हैं, जब भी बातचीत जब परिवारों में चलती है, सब लोग इकट्ठे बैठते हैं, तो उसमें क्या होता है, लड़की 18 साल की होगी, अब शादी के बारे में सोचना शुरू कर दो.
अब आप ये समझिए कि जो लड़की स्कूल में जा रही है, उसका स्कूल खत्म होते होते 18 साल हो जाएंगे उसको। यानी कि हम इसका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन डेफिनेटली यहाँ पे डाल रहे हैं कि लड़की को हमें स्कूल के बाद आगे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे वो परिवार जो पढ़ाने और पढ़ने की जो लड़की की भूमिका को अलग तरीके से देखते हैं, उसकी सामाजिक भूमिका को, वो शायद 18 साल के बाद उसकी शादी करने के बारे में सोचेंगे। तो यदि लड़कियों की उम्र भी 21 साल कर दी जाती है तो अभी 3 साल लड़कियां क्या करेंगी, चलो कॉलेज भेज दो। आई एम लुकिंग एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी, यू नो, कि वो जा सकती हैं आगे पढ़ने के लिए, उनके लिए वो अवसर आ सकता है। उसी तरह अगर हम इसका उल्टा करके देखें कि भाई लड़कों को 3 साल क्यों इंतजार कर रहे हैं, लड़कों का शादी भी 18 में कर दीजिए, तो वहां पर हमें ये देखना है कि लड़कों की क्या भूमिका समझी गई है 18 से 21 साल को लेकर, जो कि जो सामाजिक भूमिका है, जिसको ये लेके ये रूल बना, एक तरह का सामाजिक ही प्रक्रिया है शादी होना। तो उसके अंदर लड़कों के लिए क्या ऐसा 3 साल का, क्या उनको हायर एजुकेशन का अवसर था या आर्थिक रूप से उनके कंपैटिबल होने का मसला था? तो वहां पर भी लड़कों के लिए एक तरह का नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन है। तो मुझे लगता है दोनों के लिए डिस्क्रिमिनेशन है और हमें इसको समझ के चलना चाहिए कि किस तरीके से हमें बात करनी है इसके बारे में। जी। Yeah, thank you, ma'am. Ma'am, another question is like in school we have special educators for in school. So the question is like, do special educators teach in a school meant only for specifically for special children? ओके, सो स्पेशल एजुकेटर्स की जो एक्सपर्टीज होती है वो स्पेशल चिल्ड्रन में स्पेशल नीड्स के लिए होती है। और हम ये समझ के चलें कि स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं वो उनका बेसिक काम क्या होता है कि एक टीचर क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं, सपोजिंग एक कोई छात्र ऐसा है क्लास के अंदर जिसको दिखाई नहीं देता, दृष्टिबाधित छात्र है क्लास के अंदर, तो अब इस स्पेशल एजुकेटर का ये टास्क है कि ये इस पूरे प्रोसेस के अंदर कुछ ऐसे टीचिंग एड्स, कुछ ऐसे लर्निंग प्रोसेसेस क्रिएट करेगा जो विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में भी मदद करें। अब क्या कर रहा है टीचर एजुकेटर, वो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स क्रिएट कर रहा है लर्निंग के। अब वो प्रॉब्लम ये नहीं है कि टीचर एजुकेटर जो स्पेशल एजुकेटर है वो क्या कर रहा है, इश्यू ये है कि स्पेशल एजुकेटर जो रिसोर्स रूम क्रिएट करता है, क्या उसका एक्सेस केवल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को ही होना चाहिए या बाकी बच्चे भी वहां पर जाके देख सकते हैं? बहुत सारे बच्चों के सीखने का जो पेस होता है, जो उनका स्पीड होता है वो अलग होता है। तो कोई बच्चे यदि हल्के हल्के स्लो सीखते हैं तो क्या हम वो वहां पर जाके उस मटेरियल को एक्सेस नहीं कर सकते? तो रिसोर्स रूम क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशल एजुकेटर की होती है। उस रिसोर्स रूम के अंदर सबका एक्सेस होना चाहिए, ये एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बातचीत जरूरी है। तो इस तरीके से यदि हम भूमिका देखेंगे तो वो जो फैसिलिटी है उसको हम बेहतर तरीके से सभी स्टूडेंट के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उसको जोड़ पाएंगे। जी। मैम, इन कंटिन्यूएशन टू दिस आपने जो बताया अभी की जो रिसर्च रूम एंड अवेलेबिलिटी, तो इसी से रिगार्डिंग है कि we are talking about inclusive education, but in practically if we most of the school even we don't have the basic facilities. So is it right to coin the term inclusive education, or we should come up with something new terminology? So my understanding is it's not about terminology. So if we will come up with another terminology, it will not going to change anything. Yeah. So ma'am, if you wish to speak on this, I'll take a very small time on this question, because पहली बात तो रंजन जी आपने ठीक कहा कि हम इसको टर्मिनोलॉजी के खेल में ना डालें, क्योंकि शब्द से कुछ बदलता नहीं है, और कई बार शब्द से हम डैमेज ज्यादा कर लेते हैं। तो पहली बात तो हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम स्कूल्स को ना बस स्कूल्स ही बोलें, हम स्कूल को इंक्लूसिव भी बोलने की हमको जरूरत नहीं है, या हमें कॉलेज को इंक्लूसिव बोलने का कोई जरूरत नहीं है। एजुकेशन इज एजुकेशन, स्कूल इज स्कूल। अब स्कूल के अंदर 2010 के बाद क्या हुआ कि सभी बच्चों को उन्होंने कहा एसेंशियली आपको एडमिशन देना है। अब क्योंकि उन सभी में चिल्ड्रन में स्पेशल नीड्स भी आ गए, तो हमने बोल दिया कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हम इसके अंदर बात कर रहे हैं, या हम उस तरीके से हमने स्कूल्स को इंक्लूसिव कर दिया। लेकिन स्कूल्स को इंक्लूसिव आपने केवल एडमिशन की पॉलिसी को लेकर किया, वहां पे सीखने सिखाने की प्रक्रिया को लेकर उसमें काफी संघर्ष है, जहाँ पे हर एक बच्चा 2010 से पहले भी जो बच्चे स्कूल के अंदर आ रहे थे वो भी सीख नहीं पा रहे थे। हमें समझना पड़ेगा इसके अंदर 2010 से पहले जो बच्चे थे वो सारे के सारे बच्चे पास होके नहीं जाते थे। तो
स्टूडेंट चाहे हमें किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटी के बच्चे लेकर आए या पूरे नेबरहुड के बच्चे एक स्कूल के अंदर लेकर आए, क्लासरूम्स हमेशा डाइवर्स रहेंगे, साइको सोशल पर्सपेक्टिव्स उनके हमेशा सीखने के तरीके हमेशा अलग रहेंगे। तो इसलिए स्कूल को या किसी इंस्टीट्यूशन को केवल स्कूल या एजुकेशन का नाम यदि हम रखते हैं और हम ज्यादा ध्यान इस बात पे देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस स्कूल के कैसे सीख पाते हैं, कौन से वो बच्चे हैं जिनकी सीखने की सुविधाएं वहां पे उपलब्ध नहीं है और उनको हम वहां मुहैया कराएं, तो ये ज्यादा जरूरी है बजाय हम टर्म्स के चक्कर में पड़े। Ma'am, there are so many questions for you, but I will take one more last questions for you. So, ma'am, the teaching learning process has been, there is a total paradigm shift in teaching learning process. We are in physical mode, and right now since pandemic we have been interacting through online mode of education. So, and as we all know that India is a rural belt country, more than 70% of people belongs to the rural belt. So this digital divide, so are we, this physical place interaction mode, is it going to be replaced by this digital mode of interaction, or how we are moving towards, how inclusion is going to play a role? Because I guess, yeah, it's true that physical class has its own significance and online mode class has its own significance, but this pandemic has given us both opportunities and limitations. Otherwise, maybe today we are able to see you without having a physical interaction with you. So this is a kind of opportunity this pandemic has given us. But if we are thinking about that, only physical mode will be the future, then I don't think we must be in blended mode. But only the question is, are we going to change this platform to online mode, or how inclusive is going to be a matter in this scenario, in this digital divide scenario? जिन्होंने भी ये सवाल उठाया है वो एक अहम सवाल है, पर एक मेरा अनुरोध उससे पहले आपसे रहेगा, इससे पहले कि मैं सवाल का जवाब दूं, क्योंकि आपने कहा है कि ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो रंजन प्लीज अगर आप सारे क्वेश्चंस को कॉपी करके मुझे बता सके तो मुझे पता रहेगा कि कितने सवाल हमारे पास आए हैं। Ma'am, I will share the chart word file with you, total chart word file. Thank you. That is my take from the session, Okay. About the digital divide, I think it's very important for us to understand. Ranjan ji ने already ये कहा है कि जो opportunities और limitations हैं वो दोनों यहाँ पर आई हैं। बहुत importantly सबसे पहले जिसके बारे में मैं 200% श्योर हूँ, हालांकि 200% कोई टर्म नहीं होता, बट हम अपनी बात को ज्यादा एम्फसाइज करने के लिए बोल देते हैं कि फिजिकल मोड रिप्लेस नहीं होगा, फिजिकल मोड किसी भी तरह से रिप्लेस नहीं होगा। हम सब वापस जाएंगे, हमारी बहुत खूबसूरत दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट बैक टू माय कैंपस विद स्टूडेंट्स इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। तो टोटली रिप्लेस ये नहीं होने वाला है, दैट इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इसके अंदर ये देखा, जो मेरी अपनी जो लर्निंग थी इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, एंड दैट इज कि स्टूडेंट्स आर एबल टू सी, दे बिकेम वेरी इंडिपेंडेंट लर्नर्स। तो इंडिपेंडेंट लर्नर्स के लिए ये एक बहुत ही अहम जिसको हम बोलते हैं सिचुएशन थी, एक अपॉर्चुनिटी थी इंडिविजुअल लर्निंग क्रिएट करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा हम सबके लिए। तो डेफिनेटली उस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। ब्लेंडेड मोड में हम जाएंगे, हमारे लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी की तरह सामने आएगा, जैसा कि स्वयं पोर्टल पे डिफरेंट आ रहे हैं। हमारा रिसेंटली अभी यूजीसी ने हमारे जो लॉन्च किया है क्रेडिट बैंक सिस्टम, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को जरूर समझना चाहिए वो कि वो किस तरीके से क्रेडिट्स अपने बैंक में ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से वो अपने ओवरऑल एजुकेशनल एक्सपीरियंस को रिच कर सकते हैं। तो फंडामेंटली फिजिकल एजुकेशन रहेगी, लेकिन जो हमारे एडिशनल जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इसके साथ क्रिएट होंगे, और हम ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड में जब जाएंगे तो हम डेफिनेटली अपने एनवायरनमेंट्स को ज़्यादा एनरिच्ड बना पाएंगे, लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और स्टूडेंट्स को ज़्यादा ऑप्शन दे पाएंगे। डिजिटल डिवाइड का जो मसला है वो एक रियलिटी है, उसको एड्रेस करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिजिटल डिवाइड को एड्रेस करें, एंड देन वी जस्ट गो हेड विद दैट। रंजन जिस तरह स्माइल कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अब हमारा टाइम खत्म होने वाला है। Is that so, Ranjan? No, ma'am. Actually, our principal sir has joined us. So, first of all, I would like to our principal sir, Professor U.S. Pandey sir. And before hand over it to sir, I must acknowledge the fact that there is a saying that leadership means inclusiveness and reaching out, not dominance and power. Thank you, sir, for realizing this statement true and providing us a culture that is inclusive of everyone, and where everyone who joins feel they have opportunity to succeed and
grow. Thank you for giving us such kind of opportunity here in SOL. So over to sir. Namaskar. Thank you very much. Those kind of vibrant lectures. Actually, we used to organize, as you are already aware, from this Department of Education. This is probably third lecture consecutive dialogue series have been assigned, and we are also planning to have a big seminar, so that we can that we have a maximum number of students in Delhi University of the Education, Absolutely. in School of Open Learning. So I think it's a great opportunity, and I am really thankful to Mr. Ranjan. It's not me exactly that he is doing a lot of hard work, and with the coordination with the department and people like you, we have so thank you once again and for providing a lot of information, and definitely we'd like to have, as he mentioned, it is a very less time, and as if at the moment we are discussing virtually, but things are going to change very soon, and we'd like to listen you face to face so that our students can get maximum benefit. Thank you once again, ma'am. Thank you very much. Thank you, Professor And we like to Patel. give thanks to Ranjan also for providing this kind of opportunity so that our students can listen. Thank you. Absolutely. Thank you, Professor Patel. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir, for your enriching words, and thank you, ma'am, for giving us this opportunity to discuss on this vibrant topic. As I have said in the beginning of this session, also listening to you on this topic is a treat for all of us, for even me, to our institution, and to our student also, because one of the leading, I must say, researcher and teachers in this area, diversity and inclusion. So it's a gratefulness for us also to having you in such a dialogue series and have a discussion in more than about 1.5 hours. But yeah, soon, once this pandemic is over and we will get back to the, now we are in new normal, but when we're getting back to the previous normal scenario, we'll have such kind of discussion, face-to-face interaction with our students, where I am pretty sure that you will also feel more happy than this, because Yes. I personally know you like to have a conversation, face-to-face conversation, rather than this, one-way kind of communication. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. Going back to the vote of thanks section, so we are thankful to Professor Vanna Saxena ma'am for joining with us. Though she could not be physically with us, but we did take the benefit of technology, which helped us connect with her. I'm sure her valuable ideas must have broadened the perspective of all of us. Thank you, ma'am. It was surely a valuating talk. I would also like to thank all the participants who became the part of today's dialogue. And last but not the least, I would like to thank the technical team for their unbounded support for making the event successful. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone, for joining this event.